Hello everyone. So today we'll start the new topic of Unit 1, which is sharpness of resonance. Now what is sharpness of resonance? इसमें हम complete derivation करेंगे and this is also important from your examinations point of view. हमने LCR series circuit पढ़ा था, ठीक है. फिर हमने series resonant circuit में क्या देखा था? जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू नॉट के इक्वल होती है, दैट मीन्स व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द circuit, then in that case what we have at resonance, we have a condition that omega L is equal to 1 upon omega C, and for omega L is equal to 1 upon omega C, we obtained the resonant frequency of the series resonant circuit mu naught equal to 1 upon 2 pi under root LC. And at this resonant frequency, the impedance of the circuit becomes minimum and the current becomes maximum, and the maximum value of the alternating current, that is I naught max, is equal to E naught upon R, which we have obtained after substituting omega L is equal to 1 upon omega C in the expression of mod Z. ठीक है, तो हम आज इससे आगे दिखाएंगे कि हाउ वी कैन शार्पन द रेजोनेंस और ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो व्हाट डज इट से दैट वी हैव ऑलरेडी सीन that the resonant frequency mu naught of a series LCR circuit is independent of R. Mu naught हमारा कितना है? This is equal to 1 upon 2 pi under root LC. So this expression is completely independent of R. ठीक है, लेकिन क्या है जो हमारा करंट है दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, करंट इंडिपेंडेंट नहीं है. कैसे? जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट, वो क्या होता है? ई नॉट अपॉन मॉड जेड. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब हमने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा था. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है ये कितना इंपॉर्टेंट सर्किट है. तो हमारा आई नॉट कितना था? ई नॉट अपॉन मॉड जेड. मॉड जेड हमारा क्या था? दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस. ठीक है, मॉड जेड हमारा कितना आया था? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ठीक है, and at resonance, that means when omega L is equal to 1 upon omega C, in that case what will be the value of omega? Omega will become 1 upon under root LC. So at resonance, let that is equal to omega naught. ठीक है, ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन है. ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड यहाँ से वी कैन फाइंड the resonant angular frequency omega naught, that is equal to 1 upon under root LC, and from omega naught we can find mu naught, since omega naught is equal to 2 pi into mu naught. So this is the resonant frequency of the circuit, and what does it show? At this mu naught current is maximum. Why? Because this impedance mod Z becomes minimum when omega L is equal to 1 upon omega C. We get the maximum value of current as E naught upon R. ठीक है, तो ये जो maximum value of current है ये कहाँ पर है? This is the value of current at mu is equal to mu naught. ठीक है, ये current की expression है at mu is equal to mu naught. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे. अब यहाँ पर हमने क्या देखा? जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट, पर जो हमारा करंट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इसका मतलब जो हमारा पीक आता है कर्व में, उसकी जो पीक है दैट इज रेजिस्टेंस dependent. ठीक है, so from this equation 5.46 it is clear that the maximum value of current I naught max or the sharpness of the peak depends upon the resistance R of the circuit. और इसका जो वेरिएशन है I naught का with respect to frequency, ये इस कर्व में शो कर रखा है for different values of रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है तो उस केस में देखो हमारा जो कर्व है करंट का वो इतना शार्प नहीं होता, वो फ्लैट होता है. पर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है, हमारी जो पीक है
the resonance peak, that means at omega is equal to omega naught or at mu is equal to mu naught. ये जो हमारी peak है ये sharp होती जाती है as the resistance is decreasing. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि resistance जो है वो बहुत important role play कर रही है when we have to sharp our resonance. ठीक है. So when resonance is large, sharpness is poor, and when as the resistance decreases, the sharpness increases. ठीक है? And at omega is equal to omega naught, that is at mu is equal to mu naught, current becomes I naught max, which is equal to E naught upon R. So here we are plotting the amplitude of alternating current, that is the peak value of alternating current with respect to the angular frequency omega. ठीक है. तो ये फिगर हमें क्या दिखाती है? This shows the variation of I naught with the angular frequency omega for different values of R in LCR circuit. और यहाँ हमने देखा फॉर लो रेजिस्टेंस हमारी जो रेजोनेंस पीक है दैट इज शार्प, और करंट जो है इट फॉल्स क्विकली फॉर चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा नॉट से थोड़ी सी भी चेंज होती है दोनों साइड्स में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, हमारा जो करंट की वैल्यू है इट ड्रॉप्स सडनली. एकदम से जो है हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज omega naught upon 2 delta omega, where delta omega is the small change in omega on either side of omega naught, as a result of which the power dissipation becomes half of its value at resonant frequency. इसका मतलब क्या है? ये हमारा फॉर्मूला होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का. ठीक है. क्या फॉर्मूला है ये? ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा. ठीक है. फिर डेल्टा ओमेगा हमारा क्या है? स्मॉल चेंज इन ओमेगा. और ये कैसे निकलता है? देखो, ओमेगा नॉट से जब हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे गए, लेट्स से दिस डिफरेंस इज डेल्टा ओमेगा, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे गए तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो डेल्टा ओमेगा. सो दिस टोटल गैप बिकम्स 2 डेल्टा ओमेगा. और ये जो 2 डेल्टा ओमेगा होता है इसको हम बैंड विड्थ भी बोलते हैं. तो ये डेल्टा ओमेगा कैसे आता है? जब करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका हम 1/√2 कर देते हैं. ठीक है. सपोज हमारा ये कोई वैल्यू आ रही है, सपोज 20 आ रही है, तो 20 डिवाइडेड बाय √2 करके हम ग्राफ में देखेंगे कि वो वैल्यू कहाँ आ रही है. फिर हम उसको डॉटेड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर. फिर हम देखेंगे ये इस कर्व को 2 जगह कट कर रही है. ठीक है. ये हमारी जो वैल्यू है ये हमें देगी ओमेगा 1 लेट्स से. तो ओमेगा 1 हमारा कितना हो गया? ओमेगा 1 हो गया दिस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. एंड लेट्स से ये जो कट कर रहा है कर्व को, ये कट कर रहा है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2. तो ओमेगा 2 हमारा कितना हो गया? ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है. तो ओमेगा 2 कितना हो गया हमारा? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, दिस वन. ओमेगा नॉट में से अगर मैं डेल्टा ओमेगा को माइनस कर दूं देन आई विल गेट ओमेगा 2. तो ये जो डेल्टा ओमेगा है हमारा, इसको दोनों साइड्स का इन टोटल जो है 2 डेल्टा ओमेगा, दैट इज डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, इट रिप्रेजेंट्स द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. और ये हम कैसे निकालते हैं? आई नॉट मैक्स का 1/√2 करते हैं. जब हम आई नॉट मैक्स का 1/√2 करेंगे तो जो हमारी करंट की वैल्यू है वो कर्व को 2 जगह कट करेगी. ठीक है. जो एक जगह कट करेगी लेट इट बी एट ओमेगा 1, और जो दूसरी जगह कट कर रही है लेट इट बी एट ओमेगा 2. और पीक पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. तो ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 तक का डिस्टेंस होगा डेल्टा ओमेगा. सिमिलरली ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच का भी डिस्टेंस होगा डेल्टा ओमेगा. ठीक है. और ये जो कंप्लीट लेंथ होगी दिस इज 2 डेल्टा ओमेगा which is known as the bandwidth of the circuit. ठीक है. ये इसने बताया यहाँ पे sharpness of resonance जो है it is given by omega naught upon 2 delta omega, where omega naught is the resonant frequency of the series resonant circuit and 2 delta omega is the bandwidth of the circuit.
ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू होती है? एट दिस पावर डिसिपेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है पावर हमारी कितनी होती है? पावर, वी नो पावर और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? पावर इज आई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब करंट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पावर। ठीक है, तो दैट मीन्स पावर डिसिपेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। तो हम करंट कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग 1 upon √2 of the current. So for power to fall to half the value, the amplitude of current must fall to 1 by √2 times I naught max. ठीक है, अगर पावर हाफ होगी इसका मतलब ये जो करंट है हमारा आई नॉट मैक्स वो 1/√2 हो जाएगा। तो जब हम उसका 1/√2 करेंगे वी गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ करंट। फिर हम देखेंगे वो करंट जो है कर्व को कौन सी दो जगह कट कर रहा है। जो एक जगह कट करेगा लेट इट बी ω1, दूसरा ω2 हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट मीन्स ω1 माइनस ω2। ω1 minus ω2 is the bandwidth of the circuit which is equal to 2 delta omega. ठीक है, तो हमारा ω1 minus ω2 आ गया 2 delta ओमेगा। अब हम इस चीज को यूज करेंगे आगे टू फाइंड द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा, एक ग्रेटर होगी ओमेगा नॉट से और एक स्मॉल होगा ओमेगा नॉट से। लेट्स से ये जो न्यू वैल्यूज आई हैं दे आर ω1 एंड ω2। तो ω1 हमारा हो गया ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ω2 हमारा हो गया ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आ गई ω1 एंड ω2। और ये जो डिफरेंस है ω1 एंड ω2 का ये हमने अभी देखा, दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा विच इज नोन एज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा वी ऑलरेडी नो जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है it becomes 1/√2 times I naught max at omega is equal to omega naught plus delta omega। जब ओमेगा हमारा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा के इक्वल हो जाता है दैट मीन्स व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ω1, इन दैट केस हमारा जो करंट है आई नॉट वो कितना होता है? देखो एट ω1 हमारा करंट कितना आ रहा है? एट ω1 करंट इज आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो अगर हमें आई नॉट मैक्स मिल गया तो वहां से वी कैन गेट आई नॉट मैक्स अपॉन √2। और आई नॉट मैक्स हमें कैसे मिल जाएगा? दिस इज सिंपली इक्वल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल आर। So after finding I naught max, we can find I naught max upon √2। तो करंट हमारा कितना बन गया? इट इज 1/√2 टाइम्स I naught max at omega is equal to omega naught plus delta omega। ठीक है, which is ω1। ठीक है, तो सीरीज LCR सर्किट में हमारे पास इन जनरल करंट की एक्सप्रेशन क्या होती है? ये होता है दिस वी आर प्लॉटिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में से r को बाहर ले जाऊं तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम √ ऑफ r इंटू √1 प्लस ω_l माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और E नॉट अपॉन r हमारा क्या है? E नॉट अपॉन r इज नथिंग बट द मैक्सिमम value of I naught which is I naught max. So substitute E naught upon R as I naught max in this equation. So we get I naught is equal to I naught max divided by √1 plus ω_l minus 1/ωc upon R का whole square। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी नो, हमें ये चीज पता है जब हमारा ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा के, दैट मीन्स जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ω1 के इक्वल होगी, ओमेगा नॉट में हमने डेल्टा ओमेगा जब ऐड किया तो करंट कितना हो गया हमारा? आई नॉट हो गया आई नॉट मैक्स अपॉन √2। तो इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करो एट ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। सो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, दिस करंट आई नॉट बिकम्स आई नॉट मैक्स अपॉन √2।
तो do this substitution, what we'll get? I naught max upon root 2 is equal to I naught max divided by under root of 1 plus omega की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर. So this we'll get at omega is equal to omega naught plus delta omega, the current I naught becomes 1 upon root 2 I naught max. ठीक है, सो दोनों साइड से हमारा I naught max जो है वो कैंसल आउट होगा. ठीक है, एंड व्हाट वील गेट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ डिनोमिनेटर्स को, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट चला आ गया, ये क्या आ गया 1 प्लस दिस ब्रैकेटेड टर्म का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2. इस 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया 1. नेक्स्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, सो वी गेट ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है ये एक्सप्रेशन कैसे आई. तो हमने अभी क्या किया, हमने देखा कि इन जनरल जो हमारा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट वो होता है I naught is equal to E naught upon mod Z, where mod Z is under root of R square plus omega L minus 1 upon omega C का whole square. इसमें हमने देखा कि at resonance for a series resonance circuit, mu is at resonance omega is equal to omega naught equal to 1 upon under root LC, since omega L is equal to 1 upon omega C at resonance, and at this value of resonant angular frequency, a resonant frequency mu naught becomes 1 upon 2 pi under root LC, which is independent of resistance. But at resonance, the peak value of current becomes maximum, that is denoted by I naught max, and that becomes equal to E naught upon R. Since at resonance, impedance becomes minimum, mod Z is equal to capital R, since omega L is equal to 1 upon omega C. So the maximum value of the peak value of current I naught max, that is equal to E naught upon R at resonance, which is dependent on resistance capital R. So we have seen that for a series resonant circuit at resonance, the resonant frequency is resistance independent, but the maximum value of current or the current at resonant frequency is not resistance independent, it depends on the resistance, and resistance plays a very important role when we have to find the sharpness of resonance. We have seen that when we have large value of resistance, in that case we have a poor sharpness. Curve जो है, it is almost flat, there is no peak as such. But as we decrease the value of resistance, then what happens, the curve जो है हमारा, when we decrease the value of resistance, curve हमारा peaked होगा. ठीक है, at omega is equal to omega naught और at mu is equal to mu naught. और जैसे ही हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी दूर जाएंगे, वैसे ही करंट जो है it will drop rapidly. So we get a sharp peak for low values of resistance. ठीक है, ये हमने देखा. Now we'll find the value of the bandwidth of the circuit, and then what we have to find basically the sharpness of resonance, which is defined by omega naught upon 2 delta omega. ठीक है, which is defined by omega naught upon 2 delta omega. So finally we have to find this value. ठीक है, इस वैल्यू को निकालने के लिए what we have to find the bandwidth of the circuit 2 delta omega. तो सबसे पहले हम bandwidth of the circuit निकालेंगे 2 delta omega, फिर उसको substitute करेंगे in the expression omega naught upon 2 delta omega to get the sharpness of resonance. ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 delta omega निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे. देखो, जब हमारा जो I naught है, it becomes 1 by root 2 times I naught max. In that case, it cuts the curve at 2 points. The first point is omega naught plus delta omega, and the second point is omega naught minus delta omega.
and the difference between the two, that means omega naught plus delta omega, let it be omega 1, omega naught minus delta omega, let it be omega 2. So this omega 2 minus omega 1 is giving the bandwidth of the circuit. तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे टू फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. आई नॉट की जर्नल एक्सप्रेशन हमें पता है, उसको हम पहले आई नॉट मैक्स के टर्म्स में लिखेंगे, फिर उसके बाद व्हाट वी नो, जब हमारी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हम डेल्टा ओमेगा ऐड कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो करंट है वो 1/√2 टाइम्स आई नॉट मैक्स हो जाता है. सो डू दिस सब्स्टिट्यूशन इन द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ आई नॉट. सो वी विल सब्स्टिट्यूट ओमेगा एज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एंड आई नॉट एज 1/√2 आई नॉट मैक्स. सो वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 50. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. कैसे लिखेंगे, देखो 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अगर मैं ओमेगा नॉट कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. ठीक है, हमारे पास ये हो गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी, मेरे पास अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/ओमेगा नॉट. इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट रेज टू पावर -1. ठीक है, और ये चीज हमें पता है, डेल्टा ओमेगा क्या है हमारा, स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट से. ओमेगा नॉट के बाद जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो लेट्स से जो स्मॉल चेंज है दिस इज डेल्टा ओमेगा. सो डेल्टा ओमेगा इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट. सो वी कैन एक्सपैंड दिस इक्वेशन बाइनोमियली. बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का, वेयर x इज लेस देन 1. यहाँ पे डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, सो डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1, so it can be expanded binomially. And we know the binomial expansion of 1 plus x raised to power -1. This is 1 minus x plus x square and so on. ठीक है, so we are retaining only up to the first order term and ignoring the higher order terms. ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑलरेडी तुम लोगों को पता है क्या होता है, एंड वी आर रिटेनिंग ओनली अप टू द फर्स्ट ऑर्डर टर्म. तो दैट मीन्स वी आर कंसीडरिंग, वी कैन राइट दिस एज 1 minus delta omega upon omega naught. That means we are retaining only up to the first order 1 minus x plus जो भी आगे सेकेंड ऑर्डर आएगा एक्स स्क्वायर वाला, साथ में कॉम्बिनेशंस होते हैं एनसी वाले. ठीक है, उन सबको हम कंसीडर नहीं कर रहे हायर ऑर्डर टर्म्स को, तो हमारे पास सिंपली जो है ये आएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये वाला स्टेप हमारा कैसे आया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 50 में. ठीक है, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव आर x वेरी वेरी लेस देन 1. दैट मीन्स व्हेन डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1. ठीक है, तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 50. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी विल गेट, ये लेफ्ट फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज रहेगी. ठीक है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन, ये ओमेगा नॉट है सी से मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी कैसे आई, सिंपली हमने 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा को रिप्लेस किया बाय 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को आगे कैसे लिख सकते हैं,
this becomes omega naught into L plus delta omega into L minus 1 upon omega naught C plus delta omega upon omega naught square C is equal to capital R. And what we know that omega naught L is equal to 1 upon omega naught C. That means at resonance हमारी resonant angular frequency क्या है omega naught square, that is equal to 1 upon LC. That means omega naught is, what is omega naught then? 1 upon under root LC. ठीक है, तो इस चीज का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो जब हमारा ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा नॉट एल जो है वो इक्वल हो गया 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के, तो दैट मीन्स वी कैंसल दीज टू टर्म्स एंड व्हाट वील गेट डेल्टा ओमेगा एल प्लस, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी टर्म थी डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी, उसको भी वी कैन राइट एज डेल्टा ओमेगा इंटू एल. क्यों? फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या मिला? इस इक्वेशन से हम मिला 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू कैपिटल एल. तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करेंगे. 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर को वील सब्स्टिट्यूट बाय कैपिटल एल. तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आ गया, एल आ गया. तो इक्वेशन नंबर 51 हमारी किस में रिड्यूस हो गई? 2 डेल्टा ओमेगा एल इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं. हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 50 आ गई थी. उसके बाद हमने 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा को बाइनोमियली एक्सपैंड किया था, प्रोवाइडेड डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई ये. ठीक है, इस इक्वेशन में फिर हमने देखा ओमेगा नॉट एल जो है वो तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारी एट रेजोनेंस कंडीशन होती है दैट ओमेगा नॉट एल शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी सच दैट ओमेगा नॉट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हुई. नेक्स्ट वी कैन डू द सब्स्टिट्यूशन. 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी इज इक्वल टू कैपिटल एल. फिर उसके बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? 2 डेल्टा ओमेगा एल इज इक्वल टू कैपिटल आर. सो फ्रॉम दिस वी गॉट द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन एल. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है. इसका मतलब जो हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो भी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होगी. ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आई होप सबको पता ही है क्या होता है. ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन. ठीक है, उसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? 1 प्लस एन एक्स प्लस, ध्यान से सुनना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन की बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे हमारा n क्या है? यहाँ पे हमारा n है -1. ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, वहां पे हम n को -1 से रिप्लेस कर देंगे एंड विल रिटेन ओनली अप टू द फर्स्ट ऑर्डर टर्म. तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स वेयर एक्स इज डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. So we got the bandwidth of the circuit. So from this, what will be the sharpness of resonance? By definition, sharpness of resonance is omega naught upon 2 delta omega. 2 delta omega हमारा R upon L आया. So from this we get the sharpness of resonance as omega naught L upon R. तो ये जो हमारी क्वांटिटी है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट डिनोटेड बाय कैपिटल Q, which is equal to omega naught L upon R. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? शार्पनेस जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. मतलब जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ही अच्छी शार्पनेस होगी. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही फ्लैट रेजोनेंस होगा. ठीक है,
So at resonance, this quality factor omega L upon R becomes omega naught L upon R, that is equal to Q naught. तो Q naught हमारा क्या है? This is the quality factor at resonance. Q जो है हमारा quality factor होता है which is omega L upon R. So at resonance, this is Q naught, which is equal to omega naught L upon R. And it is already clear from the expression that a high quality factor circuit has a low resistance. Q naught की वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब R की वैल्यू कम होगी. इसका मतलब लो रेजिस्टेंस LCR सर्किट जो है, it has a greater sharpness. So in a series LCR circuit having high resistance, the current amplitude falls from its resonance value slowly. पर हमें क्या करना है? करंट को जो है सडनली ड्रॉप करना है when the frequency is slightly changed from the resonant frequency. ठीक है, तो selectivity of such a circuit is said to be poor and has a flat resonance. अगर हम एक ऐसा series LCR circuit कंसीडर करते हैं which has high resistance, then हमारी selectivity जो है poor होगी. In that case we'll not get a sharp peak at resonance. In that case we'll get almost flat resonance इस तरीके से. ठीक है, so for sharp resonance quality factor जो है it should be made high, and such circuits are used as the tuning circuits in radio receivers etc. Its response is maximum at resonance frequency but falls sharply when the frequency changes slightly from the resonant frequency. देखो this line is very important और ये तुम्हें बताता है the use of series resonant circuit. सीरीज, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में भी, उससे लास्ट क्लास में भी. इसका जो मेन यूज होता है वो क्या होता है कि जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चैनल जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वी गेट द बेस्ट सिग्नल. फिर जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज होती है फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी, एकदम से जो है हमारा सिग्नल चला जाता है, वी गेट अ कंप्लीट डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो इसका मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे उस चैनल को सेट किया गया है, जहाँ पे हमारे पास बेस्ट सिग्नल आता है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और हम सर्किट की रेजिस्टेंस जो है उसको बहुत कम रखते हैं ताकि हमारा क्वालिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रहे और हमारा जो सिग्नल है वो बेस्ट हो ओनली एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो मैक्सिमम हो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. फिर जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज होगी फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो करंट होगा इट विल फॉल ऑफ सडनली, एकदम से रैपिड डिक्रीज होगा इन करंट, और हमें जो है एकदम से डिस्टरबेंस सुनाई देती है. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पे ट्यून करते हैं 92.7, 93.5. ठीक है, जैसे ही हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, हमें डिस्टरबेंस सुनाई देने लग जाती है. बट एट 93.5 इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो बेस्ट सिग्नल्स हमें मिलते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे हमें सबसे अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, वहां पर हमारा जो सर्किट होता है वो प्रॉपरली ट्यून्ड होता है एट दैट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वहां पर हमारा क्वालिटी फैक्टर जो है वो मैक्सिमम होता है. दैट मीन्स हम जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर रख सकते हैं उतना ज्यादा रखते हैं. वहां पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है और हमारी पीक जो है वो शार्प होती है. ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो है इट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बट इट फॉल्स शार्पली व्हेन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसको मैं तुम्हें एफएम से रिलेट करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है किस तरीके से वर्क करता है, तो तुम जो है इजीली रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को उस सिचुएशन से. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वी हैव कंप्लीटेड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद क्या है, हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, वो मैं एक बार बता देती हूँ, उसमें ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस. एडमिटेंस मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज द इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस. ठीक है, वी ऑलरेडी नो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, ओमेगा एल, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, ओमेगा सी.
रिएक्टेंस का ऑपोजिट होता है या इनवर्स होता है, दैट इज 1 अपॉन रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, ससेप्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब इंडक्टिव ससेप्टेंस या ससेप्टेंस ऑफ एन इंडक्टर वो हमारा कितना हो गया, 1 अपॉन ओमेगा एल। सिमिलरली ससेप्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर कितना हो गया, ओमेगा सी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंस, एक होता है इम्पीडेंस। ठीक है, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस होता है एडमिटेंस, दैट इज कैपिटल Y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड Z। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का इनवर्स होता है ससेप्टेंस। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल है तो इंडक्टिव ससेप्टेंस होगा 1 अपॉन ओमेगा एल। सिमिलरली अगर हमारा अगर हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी तो हमारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस होगा ओमेगा सी। और ये रिएक्टेंस एंड ससेप्टेंस दे आर इनवर्स, तो दैट मींस इनकी जो डायमेंशंस होंगे वो उल्टे हो जाएंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो डायमेंशंस होते हैं वो किसके डायमेंशंस होते हैं, रेजिस्टेंस के। दे आर मेजर्ड इन ओम्स। तो इसका मतलब ससेप्टेंस जो है दे आर मेजर्ड इन ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बोलते हैं महोस, MHOS। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे रिएक्टेंस का इनवर्स ससेप्टेंस होता है, ऐसे इम्पीडेंस का इनवर्स जो है हमारा एडमिटेंस होता है, दैट मींस Y इज इक्वल टू 1 अपॉन इम्पीडेंस। और ये ससेप्टेंस और एडमिटेंस जो है दे बोथ आर मेजर्ड इन महोस व्हिच इज ओम इनवर्स। ठीक है, क्यों, बिकॉज ससेप्टेंस हमारा इनवर्स होता है रिएक्टेंस के और एडमिटेंस हमारा इनवर्स होता है इम्पीडेंस के। एंड रिएक्टेंस और इम्पीडेंस जो है इन दोनों के डायमेंशंस रेजिस्टेंस के होते हैं, दे बोथ आर मेजर्ड इन ओम्स। सो दैट मींस ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस दे आर मेजर्ड इन ओम इनवर्स, दैट इज महोस। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज एक LR सर्किट है तो LR सर्किट का हमारा मॉडुलस ऑफ इम्पीडेंस क्या होता है, मॉड Z। यूजुअली हमारे पास अगर LCR सर्किट है तो मॉड Z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब हमारा LCR सर्किट है, मतलब कैपेसिटर को हटा दो तो हमारा मॉड Z कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। So for a LR circuit, our admittance is 1 upon under root of R square plus omega square L square. Similarly, RC सर्किट का एडमिटेंस क्या होगा, जब RC सर्किट है तो ओमेगा L को हटा दो क्योंकि सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड नहीं है। तो RC सर्किट का एडमिटेंस क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। एंड LCR सर्किट क्या होगा, कैपिटल Y 1 अपॉन मॉड Z। मॉड Z सबको पता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सो कैपिटल Y और एडमिटेंस ऑफ अ LCR सर्किट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो LR सर्किट में हम 1 अपॉन ओमेगा C हटा देंगे, RC सर्किट में हम ओमेगा L हटा देंगे। तो ये एडमिटेंस है LR सर्किट की, ये RC सर्किट की और ये LCR सर्किट की। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। इस टॉपिक में बस इतना पता होना चाहिए, ससेप्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस, एडमिटेंस इज द इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस, एंड रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस दे आर मेजर्ड इन ओम्स, एंड ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस दे आर मेजर्ड इन महोस व्हिच इज ओम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, एनर्जी कंसिडरेशंस इन सिंपल सीरीज AC सर्किट्स। ठीक है, जहां पर हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे LR सर्किट का, देन उसके बाद RC सर्किट का, देन LCR सर्किट का। ठीक है, सिंपल है हमारा ये। देखो LR सर्किट जो है इसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, LR सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था जब हमने ऑलरेडी LC ऑसिलेशंस वगैरह पढ़े थे, उसमें बताया था जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज हाफ L I नॉट स्क्वायर, वेयर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है,
and the energy dissipated due to the resistance in one complete cycle, that is equal to I naught square R into T upon 2, where T is the time period. ये हमारा कहाँ से आया? ये एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद हो, जब हमने RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन किया था, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे हमने कैपिटल H की एक्सप्रेशन निकाली थी, ठीक है. दैट कैपिटल H केम आउट टू बी I नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2. यहाँ पर हमने वही वैल्यू को जो है यूज किया है. वहां पे हमारा कैपिटल H क्या था? वो हमारी हीट थी इन द रेजिस्टेंस R फॉर द कंप्लीट साइकिल. वही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं. तो ये हमारा हो गया एनर्जी डिसिपेटेड विच इज I नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2. और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो एक और होता है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल. तो यहाँ एनर्जी कंसिडरेशंस निकालने के लिए इन डिफरेंट सीरीज एसी सर्किट्स हम जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. तो 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन LR सर्किट इज हाफ L I नॉट स्क्वायर and energy dissipated per cycle is I naught square RT upon 2. So what does it become? It becomes 2 pi capital L upon R into T. ठीक है. ये हमारा क्वालिटी फैक्टर हो गया. इसको सॉल्व करोगे I नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमारा 2 कैंसिल आउट होगा, न्यूमरेटर में 2 pi into L बचेगा और डिनोमिनेटर में R into T बचेगा. नेक्स्ट व्हाट वी नो, दिस 2 pi upon T is nothing but ओमेगा. ठीक है. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा L अपॉन R. और यही हमारा डिराइव हुआ था इन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. जब अपने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकाली थी by using the formula omega naught upon 2 delta omega, where omega naught is the angular frequency at resonance and 2 delta omega is the bandwidth of the circuit. तो वहां पे हमारा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा क्या आया था? ओमेगा नॉट L अपॉन R, which is known as the quality factor at resonance, that is Q naught. So in general Q is equal to omega L upon R, which is the quality factor. ये हमारा लास्ट क्लास कह रही हूँ. अभी हमने जस्ट जो ये डेरिवेशन किया था sharpness of resonance, वहां पे हमने निकाला था that quality factor of a series LCR circuit is equal to omega L upon R. और वही हमने यहाँ पे देखा. अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं क्वालिटी फैक्टर के, सो फॉर अ LR सर्किट इट अगेन कम्स आउट टू बी ओमेगा L अपॉन R, which depends upon frequency, the inductance and the resistance. नेक्स्ट अब हम निकालेंगे द क्वालिटी फैक्टर फॉर अ CR या RC सर्किट. ठीक है. तो इसके लिए एनर्जी डिसिपेटेड इन वन कंप्लीट साइकिल तो हमें पता है I नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2 है, विच इज कैपिटल H, जो हमने डिराइव किया था व्हेन वी डिराइव्ड द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन अ RC सर्किट. तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? हमारा हाफ CV स्क्वायर होता है ना यूजुअली फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम एनर्जी है, तो हाफ CV स्क्वायर को वी कैन राइट एज हाफ CE स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम EMF या पोटेंशियल को कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं. E हमारा मैक्सिमम कब होगा? व्हेन E इज इक्वल टू E नॉट. ठीक है. तो हमारा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन CR सर्किट और RC सर्किट इज हाफ CE नॉट स्क्वायर, where E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF. ठीक है. इसके बाद ये क्या कहता है? लेकिन जो हमारा E नॉट है दैट इज इक्वल टू I नॉट अपॉन ओमेगा C. E नॉट हमारा I नॉट अपॉन ओमेगा C कैसे आया? देखो, वी ऑलरेडी नो फॉर अ RC सर्किट हमारा E नॉट कितना होता है? R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू I नॉट. ठीक है. ये हमारी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF होती है फॉर अ RC सर्किट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है. और हम क्या निकाल रहे हैं? क्वालिटी फैक्टर. दैट मीन्स वी हैव टू कीप आवर रेजिस्टेंस टू बी वेरी स्मॉल. So for very small r, we can write E naught to be nearly equal to
I naught into under root of 1 upon omega square c square. Under root of 1 upon omega square c square को we can write as 1 upon omega c. So we can write E naught as I naught upon omega c for RC circuit only for small values of resistance. क्योंकि अगर R हमारा small होगा तो R square और small होगा. So we can neglect this expression in comparison to this expression. ठीक है, so this expression is only possible when we keep the resistance small. तो substitute this value here. तो half c E naught square क्या होगा, I naught square upon omega square c square. So this becomes I naught square upon 2 omega square c. Now substitute this maximum energy stored and the energy dissipated in the general definition of quality factor, which is 2 pi into maximum energy stored है I naught square upon 2 omega square c divided by energy dissipated in one complete cycle I naught square RT upon 2. So after solving, it comes out to be 2 pi upon omega square c r naught. ये 2 और ये 2 cancel out होंगे और ये I naught square जो है cancel out होगा. Then we'll substitute omega. We'll substitute t as 2 pi by omega. तो t को जो है हम substitute करेंगे as 2 pi by ओमेगा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 पाई हमारा कैंसिल आउट होगा और एक ओमेगा कैंसिल आउट होगा. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग t as 2 pi upon omega we get q is equal to 1 upon omega c r. इसका मतलब LR सर्किट में हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है वो L पे डिपेंड कर रहा है. अब RC सर्किट में तो ये एक्सप्रेशन हो नहीं सकती ओमेगा L अपॉन R. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि RC सर्किट में तो इंडक्टर है ही नहीं. बट एट रेजोनेंस वी नो ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, मतलब RC सर्किट के लिए हमारा क्वालिटी फैक्टर 1 अपॉन ओमेगा C R हो सकता है, बिकॉज एट रेजोनेंस ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. तो वो होना चाहिए और वही हमारा क्वालिटी फैक्टर जो है वो निकल के आया. दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C R फॉर अ RC सर्किट. नेक्स्ट वील डू LCR circuit. Now it says that in a LCR circuit, the energy stored in series circuit is constant and the phase difference between the capacitor and capacitor EMF and inductive current is pi by 2. ठीक है, ये हम सबको ऑलरेडी पता है जब हमने LCR सर्किट करा था कि उसमें फेज डिफरेंस आता है पाई बाय 2 का. ठीक है, तो इसका मतलब अगर कैपेसिटर की EMF मैक्सिमम है तो उसका इंडक्टर का जो करंट होगा वो 0 होगा. ठीक है, ये चीज कैसे होगी, देखो हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV. V को हम यहाँ पे E ले लेते हैं. ठीक है, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन C. मैं स्मॉल q रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि कैपिटल Q जो है हमारा क्वालिटी फैक्टर है. ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर EMF मैक्सिमम कब होगा, when will E is equal to E naught, when Q is equal to Q naught. जब हमारा चार्ज कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस केस में जो हमारी कैपेसिटर EMF है वो मैक्सिमम हो गई. ठीक है, so E naught is equal to Q naught upon C, the maximum current. और इस केस में हमारा इंडक्टिव करंट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव करंट जो है बाय डेफिनेशन क्या होता है हमारा करंट, एनी करंट बाय डेफिनेशन क्या होता है dq अपॉन dt. ठीक है, and at Q is equal to Q naught and Q naught is a constant quantity. constant का differentiation हमारा क्या होता है 0. so IL inductive current becomes 0 when the capacitor EMF is maximum Q naught upon C. तो बस ये मैंने चीज क्यों बताई है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. ये चीज मैंने बस इसलिए बताई है ताकि you all will be able to understand this line कि when the capacitor EMF is maximum, the inductive current is 0 and vice versa. ये चीज मैंने वहां पे भी बताई थी जब हम यूनिट 1 में LC ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे. जब कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इन दैट केस जो हमारा इंडक्टर है उसके अक्रॉस करंट जो है 0 हो जाएगा. ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होता है हाफ C E naught स्क्वायर and maximum energy stored across the inductor कितना होता है half L I naught square. और ये चीज हमने ऑलरेडी बता रखी थी कि total energy stored जो है it is always
कांस्टेंट। एलसी ऑसिलेशंस जब पढ़ा था वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी, एनर्जी स्टोर जो है हमारी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज होती है तो इंडक्टर की डिक्रीज होती है, इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कैपेसिटर की डिक्रीज होती है, इस तरीके से कि इसका सम जो है हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर जो है इट कैन बी रिटन एज हाफ L I naught square or can be written as half C E naught square. So they are equal, and the quality factor Q is equal to, we all know for a LCR circuit this is equal to omega naught L upon R, and we know omega naught L is equal to 1 upon omega naught C at resonance. So this can be written as quality factor is equal to 1 upon omega naught C into R, where omega naught is 2 pi into mu naught, where mu naught is known as the resonant frequency of the circuit, and omega naught is known as the angular frequency at resonance or resonant angular frequency. ठीक है, तो एनर्जी कंसिडरेशंस, ये टॉपिक्स जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखा था जहाँ पे हमारा क्वालिटी फैक्टर निकल के आया था ओमेगा नॉट एल अपॉन आर एट रेजोनेंस, और हमने देखा था अगर हमें पीक जो है उसको शार्प रखना है तो अगर हमें हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट चाहिए तो जो हमारा सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस जो है हमें उसको कम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था susceptance is the inverse of reactance, admittance is the inverse of impedance, and both susceptance and admittance they are measured in ohm inverse, that is Mohs. उसके बाद हमने देखा for a LR circuit the quality factor is omega L upon R, for a RC circuit the quality factor is 1 upon omega CR, and for a LCR circuit the quality factor is equal to omega L upon R, and at resonance this is omega naught L upon R, and we know at resonance omega naught L is equal to 1 upon omega naught C. So quality factor is equal to omega naught L upon R, that is equal to 1 upon omega naught C R. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पर we are finished with our unit 1 of electromagnetic induction and electronic devices. ठीक है, आई होप सबको सारे लेक्चर्स क्लियर हैं। From the next class onwards we'll proceed with the unit 2.